Today we are going to start the first chapter of 11th syllabus of Ncert biology for Neet exam, and that is the living world, and the chapter name is diversity in the living world. Here the first para is described about what is biology and what is living thing, what is the difference between living and living, and then the second page is about the Ernest Mayr. You can read by your own, and without this we are going to start about the main chapter, the living world. So another the living the world here in the first chapter the same thing is written, how wonderful the is the living world, and the kitna wonderful है living world. The wide range of living types is amazing, and the extraordinary habitats in which we can find the living organism, be it cold mountain, deciduous forest, oceans, freshwater lakes and deserts और हॉट स्प्रिंग. मतलब ये सभी है, बट कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट है, जैसे लेक्स है, फॉरेस्ट है, ये सब, and leave us speechless. The beautiful of galloping hordes of migrating birds, the valley of flowers, or the attacking sharks evokes and a deep sense of wonder and ecological conflicts and the cooperation among the members of population and among the population of community, or even the molecular traffic inside the cell makes a deeply reflects on what indeed is life. This question has two implicate question within it. The first is a technical one and six answer to what living is as opposed to the non-living, and the second is a philosophical one and six answer what purpose of life is, and scientists we shall not attempt answering the second question. एक और फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पैरा में कुछ भी नहीं लिखा है ऐसे जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो you can leave that part. And the second part is what is living. Here is the question, what is living for the chapter. When we try to define living, जब हम define करना चाहते हैं living को, we conventionally look for the distinctive characteristic exhibit by the living organism. So यह बोल रहा है कि जब हम living को define करना चाहते हैं तो हमें एक distinctive characteristic हमने ढूंढता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट. इट इज़ नॉट फाउंड इन द नॉन लिविंग थिंग. नॉन लिविंग थिंग में भी पाया जाता है बट वो बाद में हम जानेंगे. एंड द माउंट टू सूटेबल रेस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज a unique feature of living. One can add a few more features like metabolism, ability to self-replicate and self-organize, interact and emergency to this list. इनमें सब भी कुछ कुछ फीचर होता है, जैसे मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी एंड सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, interaction and emergency. And let us try to understand each of these. So moving forward, all living organism grow. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं. ये तो पता ही होगा कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, एज बढ़ता है, सेल डिवाइड होता है. सो ग्रो होता क्या है? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर. ये दो होता है कि ग्रोथ का प्रॉपर्टी क्या होता है, एक मास का ग्रोथ होता है और नंबर का, इंडिविजुअल का ग्रोथ होता है ऑफ इंडिविजुअल्स. आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ. ये दोनों ही मतलब ग्रोथ का कैरेक्टर होता है, एक होता है इंक्रीज इन मास एंड एक होता है इंक्रीज इन नंबर. ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन. ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन. ये क्या बोलना चाहता है कि हम आप समझना पड़ेगा कि मल्टीसेलुलर क्या है और यूनिसेलुलर क्या है. ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल दोनों दो टाइप का होता है, एक होता है कि यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टीसेलुलर.
यूनिसेलुलर वो होता है जो एक ही सेल के बना होता है, एक ही सेल में उसका सारा काम होता है, जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड वो खाना पीना सारा कुछ एक ही सेल में होता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक आस वो डिफरेंट डिफरेंट सेल से मिला बना होता है और सारा सेल मिलकर एक काम करते हैं, इसको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन, सेल डिवीजन से ग्रो होता है। इन प्लांट दिस द ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर्स कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। प्लांट में कोई टाइम लिमिट नहीं होता कि लाइफ स्पैन का कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ होता ही रहता है। बट इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन अप टू ए सर्टेन एज। बट एनिमल में बट और चीज़ नहीं है, प्लांट में जो है कॉन्टिन्यूसली होता है, एनिमल में एक सर्टेन एज तक ही मिलता है growth. However, cell division occur in certain tissue to replace lost cell. मतलब सेल डिवीजन और रिप्लेस लॉस्ट सेल, मतलब अगर किसी को कभी चोट लग गया तो उसका जो पार्ट होता है जो मतलब ये हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है टिश्यू, वो टिश्यू बनने में भी सेल डिवीजन काम आता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास एक ही सेल होता है, तो उसका तो मतलब एक ही उपाय है कि सेल डिवाइड कर लो तो नंबर ऑफ ग्रो हो जाएगा, बट सेल डिवाइड होता है, इंडिविजुअल क्रिएट हो जाता है उसका। दैट्स हाउ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो। ऑन कैन इजीली ऑब्जर्व दिस इन ए इन विट्रो। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट वर्ड है इन विट्रो। इन विट्रो क्या होता है? इन विट्रो होता है एक मतलब इन होता है, इन का मतलब होता है अंदर, और सॉरी इनका मतलब होता है अंदर, और विट्रो मतलब एक कल्चर मीडियम। इनका मतलब होता है अंदर और विट्रो एक कल्चर मीडियम होता है। अगर किसी टेस्ट ट्यूब में अगर एक कल्चर मीडियम हम ग्रो करें तो उसको कहते हैं इन विट्रो। हम वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ग्रो इजीली ऑब्जर्व कर पाते हैं इन विट्रो कल्चर में। एक टेस्ट ट्यूब में यू कैन ग्रो ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर ए माइक्रोस्कोप। जैसे मैंने बोला कि एक टेस्ट ट्यूब में हम नंबर काउंट कर सकते हैं एक माइक्रोस्कोप के जरिए से। In majority of higher animals and plants, the growth and reproduction are the mutually exclusive event. ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन मेजोरिटी आर हायर एनिमल्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्योंकि देखो ग्रोथ का जो ये होता है डेफिनेशन होता है, उधर लिखा ही था कि इट इज़ द ग्रोथ का जो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। और रिप्रोडक्शन से क्या होता है? रिप्रोडक्शन से एक अगर दोनों पेरेंट्स से एक मतलब सन और डॉटर क्रिएट होता है तो ये भी तो नंबर का इंक्रीज हुआ ना, तो इसको कहते हैं दैट्स व्हाई ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। One must remember that the increase in body mass is considered at growth. अब ग्रोथ का ये भी कैरेक्टर था कि मास का इंक्रीज होगा, तो यह लिखा है कि one must remember that the increase in body mass is considered as growth. Non-living objects also grow if we take increase in body mass as the creation of for growth. हम इसको भी कहते हैं कि नॉन लिविंग थिंग भी ग्रोथ कर सकते हैं अगर बॉडी मास का सर्टेन ग्रोथ होता है। जैसे माउंटेन बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो। अब ये कैसे ग्रो करते हैं? जैसे माउंटेन हमने सुना ही होगा कि माउंटेन का हाइट बढ़ता है विथ टाइम, तो माउंटेन के ऊपर ऐसा माउंटेन होता है और माउंटेन के ऊपर एक छोटा छोटा लेयर क्रिएट होता ही जाता है डस्ट का, तो उसका भी मतलब बढ़ता है मास, तो वो भी एक टाइप का ग्रोथ ही हुआ ना।
तो वही लिखा है कि माउंटेन एंड बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स कैन ग्रोथ। सैंड माउंट्स भी एयर की वजह से कहीं उड़कर चला जाता है, तो एक के ऊपर एक आ जाता है, तो उसका भी ग्रोथ होता है। However, this kind of growth exhibits only by non-living thing by the accumulation of material. By the accumulation of the material. Accumulate होता है, एक के ऊपर एक मटेरियल आ जाता है, इसी तरह से ग्रोथ होता है on the surface. Accumulation of material on the surface. In the living thing, growth is from the inside. Living thing में कभी आउटसाइड से ग्रोथ नहीं होता, एक ग्रोथ होता है फ्रॉम इनसाइड। ए सिर्फ लिविंग थिंग में होता है कि ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, अंदर से ग्रोथ होता है, बाहर से नहीं होता। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ए वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होता है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम वो प्रॉपर्टी को बोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक के लिए अवेलेबल हो। जैसे अगर लिविंग के लिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम ढूंढना चाहे तो वो सिर्फ लिविंग में अवेलेबल हो, नॉन लिविंग में एक भी ना हो। हाँ, थोड़ा बहुत एक दो एक्सेप्शन रहना ठीक है, बट बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन अगर हो जाए तो उसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहते। तो ग्रोथ हम तो नॉन लिविंग थिंग में भी होता है, जैसे माउंटेन बोल्डर और सैंड माउंट, तो ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। Conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that is the character of living system. A dead organism doesn't go. ये लास्ट वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, डेड ऑर्गेनिज्म डजंट गो। एक मरा हुआ ऑर्गेनिज्म कभी ग्रो नहीं कर सकता। अब आ जाते हैं सेकेंड कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग में, वो होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन मतलब ये होता है कि एक पेरेंट्स, दो पेरेंट्स से सन डॉटर और कुछ भी क्रिएट हो सकता है, फ्यूचर जनरेशन, तो होता है रिप्रोडक्शन। लाइकवाइज ये इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये भी एक कैरेक्टर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेनी का द प्रोसेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोस पेरेंट्स इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रेफर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर उसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्व हो, गैमेट का फॉर्मेशन हो, तो हम उसको इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटी और वी रेफर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ऑर्गेनिज्म आर रिप्रोड्यूस बाई एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो। ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे फंगी मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। जैसे फंगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो कैसे करता है, एक स्पोर्स के जरिया। ये स्पोर्ट्स होता है छोटे छोटे, उसका और जब मतलब एक टाइम आता है तो स्पोर्ट्स ये हो जाता है, स्प्रेड होता है, तो उस स्पोर्ट्स से डिफाइंड फंगी क्रिएट हो जाता है, तो भी एक तरीके का रिप्रोडक्शन है। दे प्रोड्यूस इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा। ऐसा स्पोर्ट्स और एसेक्सुअली वे ईस्ट और हाइड्रा में पाया जाता है। वी ऑब्जर्व बर्डिंग इन प्लानेरिया। वी ऑब्जर्व बर्डिंग, अच्छा हाँ, ईस्ट में और हाइड्रा में क्या होता है, ईस्ट में और हाइड्रा में सेक्सुअली बर्ड क्रिएट होता है। बर्ड मतलब एक छोटा छोटा क्रिएशन होता है, फॉर्मेशन होता है। ये बाद में जब टाइम आता है तो ना यही अलग से होके एक अलग सा मतलब हाइड्रा और ईस्ट क्रिएट कर देता है, तो ये होता है बर्ड। यू नो इन प्लानेरिया वी ऑब्जर्व इन प्लानेरिया वी ऑब्जर्व ट्रू रिजेनरेशन। प्लानेरिया का क्या होता है, प्लानेरिया का जो होता है वो मतलब एक ऐसे ऐसे क्रिएशन होता है और इसका बीच से काट जाता है, काई से भी एक मतलब काट जाता है और एक एक पार्ट से दूसरा न्यू प्लानेरिया क्रिएट हो जाता है। In a fragmented organism regenerates and loses parts of its body become a new organism. The fungi, the filamentous algae and the protonium of mosses
ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। फंगी, प्रोटोनियमा और मॉसेस इसी तरीके से ये जो बोला ना, जो एक बॉडी होता है और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से कट जाता है और एक एक पार्ट से नया इंडिविजुअल बन जाता है, तो ऐसे ही मल्टीप्लाई होता है फ्रेगमेंटेशन की जरिए से फंगी और प्रोटोनियमा ऑफ मॉसेस। When it comes to unicellular organism like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is the synonymously with growth। यह बोला है कि बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर एल्गी में रिप्रोडक्शन ही ग्रोथ होता है। जैसे बैक्टीरिया का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और उसके लिए ग्रोथ होता है सिर्फ मतलब इंक्रीज इन नंबर, तो वो रिप्रोड्यूस करके इंक्रीज इन नंबर करता है, तो वही एक तरीके से ग्रोथ होता है। तो दोनों एक ही चीज़ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड द ग्रोथ इज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल ऑफ मास। हाँ, ये यूनिसेलुलर के लिए होता है, यूनिसेलुलर के लिए होता है। हेंस वी नोटिस द सिंगल सेल organism are not very clear about the usage of two terms growth and reproduction। हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए एक अलग अलग यूज नहीं करते, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन टर्म एक ही होता है दोनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, बट मल्टीसेलुलर के लिए दोनों अलग अलग इवेंट से। Further, there are many organisms which do not produce mules, sterile and waka be infertile human couple। mules होता है जो एक डोंकी होता है और मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। डोंकी टाइप होता है, डोंकी नहीं, डोंकी टाइप एक होता है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। डोंकी और हॉर्स का होता है। स्टेराइल ऑर्किड बी, जैसे हम जानते हैं कि एक क्वीन बी होता है वही रिप्रोड्यूस करता है, ऑर्किड बी कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि उसको रॉयल जेली नहीं मिलता बर्थ की टाइम में। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, जैसे बहुत सारी ह्यूमन कपल्स होता है जो रिप्रोड्यूस जो फर्दर जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता ड्यू टू वेरियस कंडीशंस होता है उसके अंदर, तो वो बाद में जानेंगे। तो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल होता है। Hence, reproduction also cannot be an all exclusive defining character of a living organism। Of course, no non-living object is capable of reproduce or replicating by itself। Although कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर कोई रिप्रोडक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो ये तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होना चाहिए था, बट इसमें एक टॉपिक ये है कि म्यूल, स्टेराइल, वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होता है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता और लिविंग होने के बाद भी। भाई इनफर्टाइल ह्यूमन कपल तो जिंदा है तो रिप्रोड्यूस करना चाहिए था बट वो नहीं कर सकता। वर्कर भी तो जिंदा है तो रिप्रोड्यूस करना चाहिए था बट रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। म्यूस भी जिंदा है तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो ये भी एक ज़्यादा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो होता है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म कर पाता है। Another characteristic of life is metabolism। एक दूसरा कैरेक्टर हो जाता है। पहला कैरेक्टर था ग्रोथ, सेकेंड था रिप्रोडक्शन और थर्ड है मेटाबॉलिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। हमारे अंदर थाउजेंड्स टाइम पर सेकेंड मेटाबॉलिक रिएक्शन होता ही रहता है, केमिकल रिएक्शन होता ही रहता है हमारे अंदर। जैसे डाइजेशन हो, हर एक चीज़ का रिएक्शन होता है। एक बहुत बड़ा चार्ट है रिएक्शन का, तो रिएक्शन होते ही रहते हैं हमारे अंदर। दिस केमिकल्स आर स्मॉल, बिग एंड बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइजेस एंड फंक्शंस। ये केमिकल्स बहुत सारा होता है, बहुत सारा स्मॉल होता है, बिग होता है, वेरियस क्लासेस, साइज, फंक्शंस आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। हमारे अंदर बायोमोलिक्यूल्स बनते ही रहते हैं, केमिकल्स आते ही रहते हैं। दिस कॉन्जर्वेशंस आर केमिकली रिएक्शन बाय मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये सभी रिएक्शंस के एक साथ हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organism। all living organism के अंदर thousands of metabolic reaction एक टाइम पर होता है।
be they unicellular organism or multicellular organism, all plants and animals, fungi are and microbes exhibit metabolism. ऑल द फंगी सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है सभी मेटाबॉलिज्म शो करता है। एंड मेटाबॉलिज्म का डेफिनेशन क्या है? द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इनसाइड आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। जो सभी रिएक्शन होता है हमारे बॉडी के अंदर उसके जो सम टोटल होता है मतलब सभी एक साथ को बोल जाता है कि मेटाबॉलिज्म। नो नॉन लिविंग थिंग आर एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। जाहिर सी बात है कि कोई नॉन लिविंग थिंग एग्जिबिट नहीं करता क्योंकि वो तो उसके अंदर मतलब सेल होता ही नहीं, मतलब डेड सेल होता है तो वो कैसे रिएक्शन शो करेगा? तो उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन शो नहीं होता। मेटाबॉलिक रिएक्शन ओनली लिविंग थिंग में शो होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन ए सेल फ्री सिस्टम। एक मतलब सेल फ्री सिस्टम में मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑब्जर्व किया जाता है टेस्ट ट्यूब में। एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड बॉडी एंड ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन ए टेस्ट ट्यूब नेदर इन लिविंग और नॉन लिविंग। मतलब ये भी है कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मतलब कोई भी रिएक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी, और टेस्ट ट्यूब तो नॉन लिविंग होता है। Hence, while metabolism is a defining feature of the organism without exception, but इसके होने के बाद भी हम मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग कैरेक्टर एक बोल सकते हैं। The isolated the defining character while defining character without exception isolated metabolic reaction in vitro are the non-living thing but surely living reaction. Hence, the cellular organization of the body is the defining feature of life forms. So, first defining feature हमारे पास है कि और हमारे पास है मेटाबॉलिज्म। ये कोई नॉन लिविंग थिंग में नहीं पाया जाता, लिविंग थिंग में पाया जाता है। ऑल्दो एक होता है बट इसको छोड़ दो, एक ही है। Perhaps the most obvious technically complicated features of all living organism is ability to sense their surrounded and environment. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के जो फोर्स होता है जो भी होता है उसका रिएक्ट करता है, प्लान भी करता है और प्लान भी करता है और हम भी करते हैं कि एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग, ability to sense their surrounding or environment and respond to this environment stimuli. स्टिमुलाई वो होता है एक सेंस होता है जिस मतलब एक चीज़ होता है जो हमारे अंदर आते ही हम रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं स्टिमुलाई। which could be a physical, केमिकल और बायोलॉजिकल। ये स्टिमुलाई फिजिकल हो सकता है, केमिकली हो सकता है और बायोलॉजिकली भी हो सकता है। We sense our environment through our senses organ. Plant respond to the external factor like light, water, temperature and other organism, pollutants etc. हम जो ह्यूमन होता है वो तो मतलब किसी भी एक रिएक्शन का अगर उसके ऊपर धूप पड़े तो वो छाँव में चले जाएगा, उसको कोई पीटे तो वो दूर भाग जाएगा। ऐसा फिजिकली रिएक्ट करते बट प्लांट तो भाग नहीं सकता। प्लांट कैसे करता है? उसके अंदर अगर ज़्यादा धूप पड़ गया तो वो मतलब एक लीफ होता है जो ना मुचरा जाता है और कई सारा होता है जैसे ना पानी ना मिलने पर अपने प्लांट सूख जाता है और ऐसा रिएक्शन वो रिस्पॉन्ड करते हैं। All organism from prokaryote or from the prokaryote to the most complex eukaryote can sense the response the environment requires. सारा जो प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म होता है, कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट होता है, सारा जो है जो वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। फोटोपीरियड इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक जो फोटोपीरियड होता है वो एक टाइम जब सूरज जगह धूप आता है वो होता है फोटो पीरियड, वो रिप्रोडक्शन पर इफेक्ट कर सकता है। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल इंटरिंग देयर बॉडी, ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ सराउंडिंग, ऑल ऑर्गेनिज्म आर अवेयर ऑफ सराउंडिंग, सारा ऑर्गेनिज्म अवेयर रहता है सराउंडिंग के।
Human being is the only organism who is aware of himself. Human being एक ऐसा improved organism है जो खुद के भी aware रहता है, has self consciousness. मतलब अगर हमारे अंदर ऐसा एक सेंस होता है जो सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसको उसके लिए हम खुद के लिए भी अवेयर रह सकता है. वेट ए मिनट. Consciousness therefore become the defining property of living. Consciousness कोई भी नॉन लिविंग थिंग परफॉर्म नहीं कर सकता. कॉन्शियसनेस वो होता है एक रिस्पॉन्ड जो हम स्टिमुलाई को देता हम लोग देता है, तो वो कोई नॉन लिविंग थिंग परफॉर्म नहीं कर सकता. और सभी लिविंग थिंग प्रोकैरियोट से लेकर यूकैरियोट तक सभी मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो भी है सिंपलेस्ट सभी एक परफॉर्म कर सकते हैं कॉन्शियसनेस. देयरफॉर इज बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग. तो हमारे लिए दोनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आ गया. एक होता है मेटाबॉलिज्म और दूसरा है कॉन्शियसनेस. When it comes to the human being, it is the most difficult to defining the living state. We observe patients living in coma in hospitals, virtually supported by machine, replaced by heart and lungs. The patient is otherwise brain dead. The patient has no self-consciousness. Are those patients who never come back to the normal life, living or non-living? एक क्वेश्चन है. मतलब एक आदमी जो ब्रेन डेड हो चुका है उसके लिए जब एक लाइफ सपोर्ट लगाए तो वो मतलब एक तो नॉर्मल लाइफ में कभी भी नहीं आ सकता, ऐसा कंडीशन दिया हुआ है और कोमा में है, तो उसको हम लिविंग कहते हैं या नॉन लिविंग कहते हैं. बिकॉज वो एक मतलब मशीन से सपोर्टेड है, वो कोई मतलब खुद का कुछ नहीं है, तो मशीन से सपोर्टेड है तभी वो मतलब थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स है और बाकी कुछ नहीं है. और नो सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब कुछ भी नहीं है और सभी चला गया. एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, तो इस क्वेश्चन को आप सोचो तो बाद में आंसर कर देना. In higher class you will know that all living phenomena are due to the underlying interaction. Properties of tissue are not present in the constituent cell but arise as a result of interaction among the constituent cells. Similarly, properties of cellular organelles are not present in molecular constituent of organelle but arise the result of interaction among the molecular component comprising the organelle. This interaction result the emergency properties at high level organism. The phenomena are true hierarchy of organizational complexity at all levels. Therefore, we can say the living organisms are self-replicating, evolving, self-regulating, interactive, and system-capable, responding to external stimuli. Biology is a story of life and on Earth. Biology is the story of evolution of organism. All living organism, parents, present, past, and future are linked to the another by the sharing and common generic material by to varying degrees. A chapter एक पैराग्राफ सिर्फ दिया हुआ है जो अभी तक हमने पढ़ा, वो उसके बेसिस पे एक छोटा सा समरी दिया हुआ है. अब एक नया पार्ट शुरू हो रहा है. हम लोग हमने प्रॉपर्टीज कर चुका है हमारे अंदर का लिविंग ऑर्गेनिज्म का. डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम देख चुका है और अदर्स प्रॉपर्टी भी देख चुका है. तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. अभी तक जितना एनसीईआरटी हमने करा तो वो एक बार रिवाइज कर लेना तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, बट क्वेश्चन हर साल यही से आता है. ये जो पार्ट हमने आज करा तो एक क्वेश्चन तो हमेशा ही रहता है नीट में, तो बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से ये कर लेना एक बार तो क्लियर हो जाएगा. अगर एक भी प्लेस में अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो. तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट डे ये पार्ट कराने में डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में.